we have seen the electrolysis cell. Okay, electrolysis cell, the example was NaCl. Electrolytic example, electrolyte example was NaCl. NaCl gets separated as Na and Cl2 gas. Okay, see, oxidation and reduction reaction takes place and Na and Cl2 gas is formed. Now, okay, there is a two types of the cell: electrolytic cell and electrochemical cell. Okay, in electrolytic cell and galvanic cell, two types of electrochemical cells are there. Okay, two types of electrochemical cells are there: electrolytic and galvanic. In electrolytic cell, electrical energy converted into chemical energy. Okay, and galvanic cell or voltaic cell, the chemical energy gets converted into electrical energy. Okay, and cathode and anode, where the surface is where the oxidation and reduction takes place. ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ओके, रिडॉक्स रिएक्शन होगा पूरे सेल में. This is anode. Okay, where the anode oxidation, cathode reduction. cathode पे क्या होगा? reduction होगा. Okay, and anode is positively charged in electrolytic cell and cathode is negatively charged in electrolytic cell. Okay, cathode is negatively charged. This is fused NaCl. Now we will see aqueous NaCl. Electrolysis of an aqueous NaCl can be carried out in a cell used for electrolysis of molten NaCl using inert electrode. Okay, the fused NaCl replaced by moderately concentrated aqueous solution of NaCl. aqueous solution में क्या होगा? वाटर में solution होगा NaCl का. ओके, अब वाटर भी इन्वॉल्व है, उसका भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा रिएक्शन. ओके, द वाटर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl लीड्स टू इलेक्ट्रोड रिएक्शन दैट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. कैसे? मोल्टन NaCl से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वाटर का भी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होगा. सी, Na प्लस क्या हो रहा है इधर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Now see, वाटर के साथ भी दो रिएक्शन होगा, दोनों भी रिएक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. तो फर्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड. ओके, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड. और ये E0 इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. वो हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे. ओके, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? दिस इज़ अ करंट मेजर. ओके, Na फॉर्म हो रहा है रिडक्शन से, Na प्लस का रिडक्शन हो रहा है, वाटर का रिडक्शन होने के बाद H2 गैस एंड 2OH माइनस. ओके, ओके, oxidation half reaction will be at anode. There will be a competition between oxidation of Cl minus ion to Cl2 gas case of molten NaCl and oxidation of water to O2 gas. देखो इसमें क्या हो रहा है? 2Cl minus is aqueous forming Cl2 gas plus 2 electron. Okay, giving 2 electron, and H2O water is forming O2 gas and 4H प्लस एक्वियस. ओके, तो ये H प्लस आयन फॉर्म कर रहा है एंड O2 गैस फॉर्म हो रहा है. ओके, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. Cl2 and H2 gas. Results of electrolysis of aqueous NaCl: H2 gas is liberated at cathode, Cl2 gas is released at anode. Okay, because Na plus ions remains unreacted and OH minus ions are formed at cathode, NaCl solution is converted into NaOH solution. NaCl से क्या बन जाएगा? NaOH solution. OH माइनस आयन भी फॉर्म हो रहा है और Na प्लस भी फॉर्म हो रहा है. तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl. ये सेल का डायग्राम ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है. ओके,
इसमें सिर्फ मोल्टन NaCl लेना है आपको और H2 गैस और Cl2 गैस फॉर्म होगा. यस. नाउ द अनदर सेल इज voltaic cell or galvanic cell. Okay, another type of the cell in which electricity is generated through chemical reaction, through spontaneous chemical reaction. Okay, a galvanic or voltaic cell is made up of same two half cell. Okay, each half cell consists of metal strip immersed in a solution of its own ions known concentration. टू हाफ सेल, इसमें क्या हो रहा है कि एक ही कंटेनर है. ओके, एक ही कंटेनर और दोनों भी इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में डिप किया है. गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल में क्या होगा, दो सेपरेट कंटेनर होंगे, सेपरेट सोल्यूशन होंगे. ओके, और उस इलेक्ट्रोड को उसमें डिप किया होगा, इमर्स्ड इलेक्ट्रोड. ओके, कैसे, फॉर एग्जाम्पल जिंक मेटल इमर्स्ड इन. अब जिंक जो है इलेक्ट्रोड हमने लिया, इमर्स्ड इन 1 मोलर एक्वियस सोल्यूशन ऑफ जिंक आयंस फॉर्म्स एन हाफ सेल. ओके, एक बीकर है, उसमें जिंक सोल्यूशन है और उसमें हमने जिंक का मेटल डिप करना है. दिस इज़ 1 हाफ सेल. ओके, अनदर, उसमें हमने फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट लिया है. ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें कॉपर का ही इलेक्ट्रोड आपको डिप करना है. तो कॉपर, जिंक, ये मेटल्स जो है दिस इज़ नॉट इनर्ट इलेक्ट्रोड. ओके, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं. हमने लास्ट एग्जांपल में ग्रेफाइट का एग्जांपल देखा, दैट वाज इनर्ट इलेक्ट्रोड. इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो अपने आयंस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं कर रहा है. ओके, जिंक और कॉपर का अगर साइज देखेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, the size will be decreasing. Okay, the size will decrease क्योंकि उसके आयन, जिंक के आयन और कॉपर के आयन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने पर साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा. So it follows that two metal plates in the solution of their ions with known concentration are required for construction of galvanic or voltaic cell. Two half cell are constructed by immersing two metal plates in the solution of their respective ions placed in a separate container. Two half cell so constructed are combined together to form galvanic cell. Okay, the metal plates called electrodes are connected through voltmeter by conducting wire or transfer electron. Okay, अब क्या है, दो सेपरेट बीकर में हमको, एक बीकर में एनोड डिप करेंगे, एक बीकर में कैथोड होगा. मतलब दो सेपरेट इलेक्ट्रोड को हम अलग अलग रखेंगे. अगर अलग इसी तरह से अलग रखेंगे तो कनेक्ट कैसे होगा, ठीक है, ट्रांसफ़र कैसे होगा इलेक्ट्रॉन को, तो हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर से. ओके, करंट मेजर करने, वोल्ट मीटर. एंड the metal plates called electrodes are connected through voltmeter by conducting wire. Okay, conducting wire होगा दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो के लिए, for transfer of electron between them. To complete the circuit, the two solutions are connected by conducting medium through which cations and anion move from one compartment to other. This required is fulfilled by salt bridge. Okay, now what is salt bridge? So salt bridge in galvanic cell, the two solutions are connected by the salt bridge. It is a U-shaped tube containing saturated solution of inert electrolyte. U-shape का ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल है. ठीक है, KCl और NH4NO3 and 5% sugar solution. The ions of electrolyte do not react with ions of electrode solution or the electrodes. Okay, तो ये सॉल्ट ब्रिज के जो आयन होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड से रिएक्ट नहीं करेंगे. सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ओके, फंक्शन यहाँ पे आई थिंक नहीं दिया है. फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है कि दोनों जो बीकर है, ठीक है, दो कंटेनर है, दो हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करेगा. ओके, टू हाफ सेल में, और मेन उसका काम है टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन. ओके, न्यूट्रलिटी सोल्यूशन को मेंटेन रखे. कई कैटायन कम हो रहा है तो इसका इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन है वो
उसमें जाएगा लेकिन रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर सेल हाफ सेल में एनायन की कमी है तो वो एनायन प्रोड्यूस करेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, ओके, सोल्यूशन का। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। कनेक्टिविटी होगा, यस, यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप हम पुट करेंगे, उसको कनेक्टिविटी होगा। एंड दो हाफ सेल को क्या करेगा, वो टू हाफ सेल को कनेक्ट करेगा, यस, एंड maintain and used to maintain the neutrality of the solution. Okay. Formulation or short notation of galvanic cell. In galvanic cell, the represented by formula or short notation that includes electrode. Okay, represent कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखो गैल्वानिक सेल में कैसे रिप्रेजेंट करते। रिएक्शन गिवन है तो the metal electrodes or the inert electrodes are denoted by vertical lines placed at a end of the formula or short notation anode minus is written. Okay, see, गैल्वानिक सेल में एनोड इज नेगेटिव। अब कैसे नेगेटिव है, ठीक है, वो हमको देखेंगे हम रिएक्शन में और उसका डायग्राम जब स्टडी करेंगे। द एनोड इज रिटन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड द कैथोड इज रिटन एक्सट्रीम राइट। तो राइट हैंड साइड पे आपको कैथोड लिखना है, जो भी कैथोड है, जिंक, कॉपर, ठीक है। एनोड लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड वाज पॉजिटिव, ओके, एंड कैथोड इज नेगेटिव। हियर एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव गैल्वानिक सेल में। तो ये डिफरेंस याद रखना है। द इनसॉल्युबल स्पीशीज ऑफ एनी और गैसेस आर प्लेस्ड इन द interior position adjacent to the metal electrodes. The aqueous solution of ions are placed at the middle of the cell formula, okay. The single vertical line between two phases indicates the phase boundary, the indicates direct contact between them. A double vertical line between two solutions indicates they are connected by salt bridge. The additional information such as concentration of solution and gas pressure is also given. A single half cell is written in order aqueous solution of the ions first and then solid electrode. Example लिखेंगे तो समझ जाएंगे। Zinc 2+ is solution 1 molar and zinc solid बाद में आएगा, ठीक है। This is the order is reversed when the electrodes act as the anode in the cell. The following example illustrate these convention. The cell composed of Mg anode and Ag cathode consists of two half cell. Ag अब एग्जाम्पल दिया सिल्वर और मैग्नीशियम का, जिसमें जो दो हाफ सेल से कनेक्टेड है। सिल्वर के सोल्यूशन में सिल्वर का इलेक्ट्रोड डिप किया है, ठीक है, और मैग्नीशियम वाले में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड डिप किया है ना। इसमें जो है Mg जो है इसका रिडक्शन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक है। तो कैथोड को हम कहाँ लिखते हैं, एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड, ओके। एनोड इज एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड कैथोड इज एक्सट्रीमली राइट। कैथोड को हम राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज कैथोड और यहाँ पे क्या होगा, एनोड, कैथोड एनोड। उसके बाद वर्टिकल लाइन solution, concentration of solution in the bracket, okay, same given solution, and this double vertical line indicates there is a salt bridge present between the two cell, okay, for connection. So double vertical line क्या show कर रहा है कि there will be a salt bridge, okay, there is a salt bridge which connected these two cell. Ag का Ag solution में dip है, Mg का Mg solution में, this is cathode and this is anode, okay. Anode is negative here and cathode is positively charged, okay. So ये आपको याद रखना है नोटेशन। अब हम गैल्वानिक सेल का जो है डिटेल में डायग्राम
ओके, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है, वो देखेंगे. दिस वाज द ओवरव्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन गैल्वेनिक सेल. ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. यस, एक यहाँ पे आया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक के, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, किसका दो टाइप के एस्पेक्ट्स होंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स. सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम जो हम स्टडी कर रहे हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, कौन से आयंस का, कौन सा मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से मेटल का रिडक्शन होगा. ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी है जिसमें हर एक मेटल आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कैलकुलेटेड है. ओके, कितने एक्सटेंट तक वो ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, फैराडेज लॉ और ये सब जो चीज़ें हैं वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में आएंगे. एक चार्ज जो है क्या डेवलप करेगा, चार्ज डेवलप होने के बाद क्या करंट, यू नो द वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन की क्या कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितना करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, वो सब हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में स्टडी करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट जो है वो गैल्वेनिक सेल को डिटेल में देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होंगी एंड यस कंडक्शन भी एक टॉपिक है जो स्टडी करेंगे.